Hello everyone, once again welcome to the YouTube channel of Get Set Law by IMS. My name is Siddhant, and guys, as we have already been doing for all the previous months, that is for the month of May, June, July, that a monthly roundup for all the legal current matters, it's already been there. So now for the month of August we are over here. So requesting all the students preparing for CLAT 2026 or A-Late or for SLAT, please be with us so that you have a bit of insight about it. Majorly for the students who's aiming for CLAT, it's explicitly very much important because it helps you to understand majorly in contrast with कोई से पैराग्राफ आ जाते हैं ना जिसमें करंट लीगल पैराग्राफ्स रहते हैं, ठीक है. So as far as this particular video is considered, I'm going to talk about those certain cases. 6 to 7 cases have already been taken. The list is going to be there. उस पे हर केस का एक summary I have explained it. Then the most important part, हर केस के end में I've taken up certain legal terminologies. तो वो आपके लिए most important बन जाता है because these terminologies comes into your paragraphical form. Okay, so let's start with this videos. Let's not waste much of your time. So for the month of August, what we have decided is कि these are the topics which we're going to take it up. So one is related with some Madras High Court have given a good backing to the Tamil Nadu transgender policy which has happened. Then a Supreme Court have upheld a particular decision which earlier the High Court have given it up that the Pollution Control Board does not have a hold of it और compensation या फिर ये penal provisions हो नहीं कर सकते, सिर्फ कोर्ट कर सकते, तो वो बात की गई है. देन जेंडर न्यूट्रलिटी और जेंडर इक्वालिटी में एक बाइफिकेशन समझाया है सुप्रीम कोर्ट ने. पॉलिसी रिलेटेड विथ आर्मी से रिलेटेड जो पॉलिसी उस पर दिया है. नेक्स्ट एक दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो स्ट्रे डॉग्स के ऊपर है दिल्ली में हैव बीन मल्टीपल जगहों पे एंड रिसेंटली ही अभी द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन सर्टन गाइडलाइंस एंड अ प्रॉपर जजमेंट हैज बीन गिवन टू द स्ट्रे डॉग से रिलेटेड, तो वो वाला मैटर इज देयर. Then talking about a same sex couple challenge, a gift tax rule, जो income tax rules के हिसाब से कि क्या ये same sex couple that is male male और female female together can be considered to be taken under the definition of spouse, उसके बारे में बात की है. फिर उस पर क्या decision आया, क्या guidelines आया, that is we'll going to discuss. Then Karnataka High Court have given the rules again related to the gender neutrality under the POCSO Act. It is not only explicitly कि सिर्फ मेल्स को ही कंसिडर किया जाएगा विच इज़ गोइंग टू बी अगेंस्ट द प्रिवेंशन ऑफ द चिल्ड्रन द सेक्सुअल अब्यूज एंड एवरीथिंग. सिर्फ मेल्स ही, क्योंकि इवन दो द लॉ मेंशन्स अबाउट द टर्म ही, बट क्या वो ही को कैटेगराइज करके सिर्फ जेंडर अनइक्वल रहेगा? नो, दैट इज व्हाट इसके बारे में बताया. द लास्ट पार्ट टॉक्स अबाउट वेयर द मद्रास हाई कोर्ट हैव declined a particular plea which was filed against an actor जो already एक political party के part हैं, the South Indian actor विजय. तो उन्होंने जो फ्लैग यूज किया था दैट वाज सिमिलर टू दैट ऑफ द ट्रस्ट जो ऑलरेडी एक चलता है. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग देयर, तो वी विल गोना डिस्कस अबाउट इट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस. It says Madras High Court have commenced that means he has backed up Tamil Nadu's transgender policy. So इस केस में exactly हुआ क्या था, let's understand. So Madras High Court have praised the Tamil Nadu government for its landmark state policy for transgender person 2025 officially effective from 31st July 2025. That means there was already a hearing going on और जहाँ पे transgender की policies को बहुत ज़्यादा descriptively नहीं बताया गया था where they'll gonna get some protections or not. मतलब policy is already there but कुछ segments में वो पॉलिसी का प्रोटेक्शन नहीं था. वो क्या है अभी आगे अपन देखेंगे, बट दैट इज व्हाट इट टॉक्ड अबाउट, ठीक है. सो द पॉलिसी वाज डिस्क्राइब्ड एज अ वाइटल स्टेप फॉर लाइफ सेफ्टी हेल्थ एंड राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर एंड इंटरसेक्स पर्सन. सो इस कॉन्ट्रास्ट में दिस मैटर केम इनटू द portion and Madras High Court have appreciated that Tamil Nadu transgender policy. So during the hearing, so the question came कि भाई legal issue क्या था. There was one of the hearing which was going on. The court realized there are certain gaps which is there in the systematic protections and it urged the state कि भाई आप beyond formal policies, whatever is the formal policy, थोड़ा सा societal aspect को भी ध्यान रखते हुए you can bring more changes into these policies. तो उस policy में क्या क्या add-ons है, guidelines है, that is what is being there. So final verdict में क्या हुआ, the Supreme Court has issued strong observations and directions on the healthcare, education, legal protections, marriage rights, civil rights and further recommended
the formation of a quasi-judicial commissions and the bodies which is at the state and the district level पे भी यहाँ पे दी गई हुई है, वो committees formulate की गई. If there is any violations related to these policies and rules, तो the cases could be taken before them. So यहाँ पे already on an ongoing case इस चीज़ को highlight करके explicitly rules frame करने को बोला गया. That means it's upgraded. ऑलरेडी जो है पॉलिसी दी गई थी ट्रांसजेंडर पर्सन 2025 का जो पॉलिसी इज ऑलरेडी देयर, इसको थोड़ा ऐड ऑन किया गया. दैट इज व्हाट हैज हैपेंड. सो इट्स नॉट एक्सप्लिसिटली अ डिसीजन, एक किसी डिसीजन का पार्ट था विच नीडेड. सो ऑलरेडी पैराग्राफिकल फॉर्म में इट कैन कम. What are the terminologies which could be there? So section 377 has already been known to you people. You might have already seen about it. There was a judgment which they quoted over here, an ALSA judgment, which recognized the third gender and a right to self identity once gender. इसके बारे में बात की गई. So this terminology became important. Then also talked about the horizontal reservation, that is left to right वाला जो reservation होता है वो, a type of an affirmative action across all social categories, whether it is women, disabled, transgender. So that is what the horizontal reservation about. And then एक term यहाँ पे आया था SOGI. So SOGI you can say that it's sexual orientation and a gender identity which is considered to be a key framework for LGBTQ IA plus rights. ठीक है. So this is what was important in this particular case. So that is why the Madras High Court have backed this up. Coming to the second part, जहाँ पे there was a case related with an environmental damage which was happening, already was dealt by Delhi High Court. इसमें जो pollution control board होता है, the board was DPCC, that is यहाँ पे दिया हुआ है, that is a Delhi Pollution Control Committee. इनके decisions को change करके Delhi High Court have taken the case back और बोला था जो भी so this particular body, that is DPCC, have put up onto the company, that is इनका केस किससे था, लोधी प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड से. they have already issued a show cause notice to them कि under multiple sections of water and air prevention control act, वहाँ पे sections के बारे में बात की हुई है आगे. ये section 33A and 33A 33(1) which is water act, air act के बारे में. तो where they mentioned about, they have issued a show cause notice that they have to come because it is an environmental violation. कहीं ना कहीं pollution हो रहा है water and air का, and so is the reason. उसके ऊपर compensation डाल दिया गया कि आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि आप गड़बड़ी कर रहे हो. जो polluter pay principle पे आता है ना, the one who's polluting, that's the law, you have to pay for it. अब यही केस आगे चला गया दिल्ली हाई कोर्ट में. दिल्ली हाई कोर्ट हैव हेल्ड दैट द एक्शंस वर पीनल इन नेचर. मतलब ये पीनल प्रोविजंस आते हैं और पीनल प्रोविजंस के रिलेटेड डिसीजंस ये कमिटी, दैट इज द बोर्ड, द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कैन नॉट गिव इट. इट्स द कोर्ट्स पावर दैट कैन इम्पोज ओनली थ्रू कोर्ट ट्रायल्स एंड ऑर्डर्ड अ रिफंड ऑफ द कलेक्टेड अमाउंट. सो मतलब जो आपने डिसीजन दिया था एंड यू हैव कलेक्टेड द पेनल्टी एंड एवरीथिंग, ये वापस करिए. दैट इज व्हाट वाज. तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डिसीजन वापस हो गया. अब ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट ने. सो सुप्रीम कोर्ट मेंशन दे अपहोल्ड द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पावर. इन्होंने कहा ये इनके पास पावर है जो सेक्शन 33A 31A में रिस्पेक्टिव एक्ट्स में इट्स ऑलरेडी गिवन. तो क्वेश्चन आए, कैन रेगुलेटर्स लाइक डीपीसीसी द पोल्यूशन कंट्रोल इम्पोज अ मॉनेटरी एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन? क्या ये कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क मार देते हैं जो नहीं बनाए. और without judicial proceedings or is equivalent to an impermissible penalty. मतलब क्या ये सिर्फ environmental compensation can only be taken through judicial proceedings? क्या ये pollution control board does not have the power? That's the question. तो इसी question पे decision क्या है? Environmental compensation is not punitive. तो punitive damages are majorly ordered by court with an intent to punish the other person. तो उन्होंने बोला environmental compensation जो आप दे रहे हो ना, क्योंकि you are doing something wrong. Polluter pay principle में भी already पढ़ा होगा. क्या है? अगर polluter pay principle का question पूछ सकता हूँ, अगर मैं पूछता हूँ क्या है, तो you have to put the answers in the comment section and let me know कि सर polluter pay principle ये हो, जाके पढ़ लेना. ठीक है. So it is restitutionary which is aimed at preventing and repairing damage and therefore can be levied without trial. मतलब this can be done by the pollution control board. Section 33A मतलब 33A and 31A. तो 33A water act, 31A air act. So it's not exactly water, it's prevention of water. That is what I just shorted form. So grant wide powers to issue directions, and it also allow DPCC's appeal validating the power to impose environmental compensation. So that is what was the decision given. So legal concept क्या आता है यहाँ पे? they talk about environmental compensation. ये क्या होगा? A monetary recovery which is imposed by regulators, that is the pollution control boards, to offset or prevent environmental damage. If there is any environmental damage which is happening, उसके protection के लिए जो compensation लिया होता है, that is environmental compensation.
Next is polluter principle. लो सर आपने क्वेश्चन पूछा था, आंसर इज देयर ऑन द स्क्रीन ओनली. ओके, अ कोर कॉन्सेप्ट इन एनवायरमेंटल लॉ विच रिक्वायर्स पोल्यूटर, द वन हु इज पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट, जिसने गंदगी फैलाई वही आके साफ करेगा. दे हैव टू बेयर दोज कॉस्ट ऑफ डैमेज एंड दी रिस्टोरेशन. आप ही ने गड़बड़ी की, आप ही को रिस्टोर करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज टॉक अबाउट अ रेस्टिट्यूशनरी रूल, जो यहाँ पे बात किया था ना दैट इट इज रेस्टिट्यूशनरी. वो क्या है? तो इट इज अ मेजर विच इज एम्ड एट रिस्टोरिंग द स्टेटस को, नॉट पनिशिंग द वायलेटर. मतलब कि जिसने वायलेट किया है उसको पनिश नहीं करना, बट रादर देन वी वांट टू रिस्टोर इट. दैट इज, अगर आपने गड़बड़ी की है, यू पे दैट कॉम्पनसेशन, यू गिव दैट अमाउंट टू द पीपल जहां पे गड़बड़ी है, देन रिस्टोर इट बैक टू योर ओन पोजिशन. वी डोंट वांट टू कीप इट लाइक कि पनिश के एंड देन यू आर डीबार्ड फ्रॉम इट. नो, किसी को सुधारा जा सकता है ना, दैट्स द इंटेंट. Section 33A of Water Act and 1 it empowers regulators to issue direction for compliance including closure and etc. And now it's even talk about that and term ex ante. Ex ante means it's a preventive action. मतलब something which could have happened होने से पहले I have taken a preventive action before any harm occurs, as opposed to ex post, that means on the basis of fact. तो ex post is after the fact which has happened. Ex ante means होने के पहले certain acts which have been taken. So that is one of the terminology. So this was in contrast with the Supreme Court which have taken the decision. Next they talk about a gender neutrality often being misunderstood as gender equality. सुप्रीम कोर्ट ने कहा. So एक already case था जहाँ पे आर्मी कोटा से related the policy was already be there. What was that policy? They was challenging a 2023 का policy which implemented from 2024. ठीक है, तो ये आर्मी कोटा पॉलिसी फॉर द जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के लिए विच वॉज देयर. इस पॉलिसी में जेंडर न्यूट्रलिटी के अंडरस्टैंडिंग के बारे में सुप्रीम कोर्ट बता रहे हैं. एंड इसी में एक पेटिशन फाइल की गई थी. व्हाट वाज दैट पेटिशन? इट वाज फाइल कि भाई जेंडर न्यूट्रलिटी एंड इक्वालिटी का सही से इंटरप्रिटेशन हैज नॉट बीन देयर. व्हाई? बिकॉज अ लॉट मेनी टाइम्स पीपल से व्हेन इट कम्स टू अ पॉइंट कि भाई न्यूट्रल रहना चाहिए, दैट मीन्स यू विल ऑलवेज कंसिडर सिलेक्शन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. भाई अगर किसी के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो मार्क्स के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे पर्सन सिलेक्शन हैज टू बी डन. येस और नो? अग्री करते हैं ना? अब वहां जेंडर न्यूट्रलिटी मींस अब वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दैट इज नॉट वील गोइंग टू गिव ड्यू रिगार्ड. यही सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया. बट पीपल वर सेइंग जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, मतलब 50-50%. तो पॉलिसी में कहीं 50-50 लिखा था, उसका इंटरप्रिटेशन वर रॉन्गली बीइंग डन, और इसी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन के लिए एक रिट पिटीशन फाइल की. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ भाई बात सही है, यहाँ पे देयर इज अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, पीपल आर मिसअंडरस्टैंडिंग व्हाट इज जेंडर न्यूट्रलिटी विद द इक्वालिटी. ठीक है. So the Supreme Court have clarified the distinction between these two terms. The judgment arose when a writ petition challenging a particular policy which prescribed a 50-50 male-female induction. तो already एक 2023 policy जो 24 में implement हुई थी, उसी से related writ petition था, वहाँ पे Supreme Court have given it a proper point. So the question is whether the Army's recruitment policy was truly a gender neutral policy, या फिर न्यूट्रलिटी के नाम पे ये एक इक्वालिटी का डिस्गाइज दिया गया है कि हम 50% मेल 50% फीमेल रखेंगे. मतलब अगर मेरे पास मोर मेल्स हैं या मोर फीमेल्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट मैं सिलेक्शन नहीं करूंगा, क्या ऐसा है? यही क्वेश्चन रेज हुआ. तो वर्डिक्ट क्या आया? द कोर्ट हैव स्ट्रक डाउन द आर्मीज फिक्स्ड इनटेक रेशो. ये जो पॉलिसी में 50-50 लिखा था ना, दे सेड दैट इसका मतलब ये 50 मेल 50 फीमेल या व्हाटएवर इज द टोटल नंबर, उसका 50-50 नहीं होगा. रादर देन it should be purely based on the merit without predetermined male female quota. कोटा के बेसिस पे नहीं होगा भाई. अब अगर बोला कि वहाँ 50 फीमेल्स होने या मेल्स होने, अब वो मेरिट बेसिस पे नहीं होगा, तो दिस इज रॉन्ग. तो दैट इज व्हाट दे हैव गिवन इट अप फॉर द आर्मी रिक्रूटमेंट पास. सो इट रीअफर्म दैट आर्मीज प्रोफेस्ड पॉलिसी इज अ जेंडर न्यूट्रल, not a gender specific, and that implementation must align with this standard. और इसी के साथ certain concepts यहाँ explain किए गए. Let's understand what is gender neutrality. A policy approach where gender is irrelevant to the selection, decisions are based solely on the basis of merit. ये होता है gender neutrality. Equality का मतलब होता है policy which is ensuring equal representation of men and women, often through numerical balance. कि भाई इक्वल बैलेंस मीन्स 30-30 भी हो सकता है, 10-10 भी हो सकता है, 1-1 भी हो सकता है, एनी बैलेंस दे कुड बी मेंटेन. ये होता है इक्वालिटी. यहाँ मिस इंटरप्रिटेशन हो गया. देन अ रिट पिटीशन, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट.
ठीक है. So this was for few legal concepts which were in contrast with that. Now since we have done 3 parts, I would want all the students to make it a point and understand कि ये सारी चीजें for your knowledge base is important. आपको समझ आ गया, केस समझ आ गया, समझ आ गई. But next what you have to do, you have to go check out this particular title and go and read about it. कि इसके बारे में जाके कोई ब्लॉग, कोई आर्टिकल, कहीं लीगल न्यूज होगी, प्लीज रीड अबाउट दैट. डोंट गो एंड रीड द जजमेंट, क्योंकि जजमेंट में यू विल गोना मिक्स इट अप थिंग्स कि भाई उसने ये बोला, उसने बोला. यू हैव टू डू दैट रादर देन यू हैव टू रीड द लीगल आर्टिकल, क्योंकि उसके बेसिस पे इफ अ पैराग्राफ कम्स देन दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलो लेट्स गो टू द फोर्थ पार्ट व्हिच सेज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन स्ट्रे डॉग्स. अब ये तो एक टॉक ऑफ द टाउन ही हो गया. पिछले 2 महीने से तो ये हैव बीन देयर. दिल्ली में बात हो रही है, मल्टीपल एनजीओज, एक्टिविस्ट आके इस पे नारे लगा रहे हैं ये तो इनह्यूमन ट्रीटमेंट है, ये गड़बड़ी है. ठीक है, बात सही है, बट लेट्स सी बोथ द फैक्ट्स. क्योंकि देखो वी लॉयर्स, वी एडवोकेट्स हैव टू सी दोनों पहलू. वी कांट ऑलवेज से दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, वेयर इज ह्यूमन इनह्यूमन. ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्यों रेज हुआ? क्योंकि यहाँ पे शायद 6 to 14 ईयर्स के बीच में कोई एक फीमेल चाइल्ड था, उसको डॉग ने बाइट कर लिया. ठीक है, अब बाइट करने की वजह से उसकी डेथ हो गई. अब ये क्वेश्चन रेज हुए कि भाई ये जितने भी स्ट्रे डॉग्स होते हैं इनकी अगर स्टरलाइजेशन नहीं हो रहा, वैक्सीनेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपर्ली, विच बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, वी अग्री, बट ऑटोमेटिकली इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल ऑल्सो हु आर फीडिंग देम. अगर आप कुछ भी अटरम सटरम उनको खिलाओगे पिलाओगे एंड देन दे विल बिकम, उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा एंड दे गोना बाइट ईच अदर, दैट इज वेयर दे गोना बाइट द ह्यूमंस ऑल्सो, और वो इन्फेक्शियस हो जाता है. एंड यहीं पे क्वेश्चन रेज होता है कि क्या पब्लिक सेफ्टी इज मोर इंपॉर्टेंट देन दी क्रिमिनल, सॉरी नॉट क्रिमिनल, इट्स दी एनिमल राइट्स. दैट इज व्हाट वाज द मेजर क्वेश्चन व्हिच वाज रेज्ड. सो दोनों पॉइंट्स आर क्लियर. आई एम नॉट गोइंग विद द फेवर कि भाई कोर्ट हैज सेड राइट और द पब्लिक वर और द एनजीओज वर राइट. बोथ वर राइट ऑन देयर ओन पार्ट, बट वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस. इसी को तो इकोलॉजिकल बैलेंस बोलते हैं. नहीं तो भाई people who eat non-veg they'll gonna kill everyone, the people who eat veg they'll be like, है ना. तो ये थोड़ा प्रॉब्लम सिचुएशन हो जाता है. सो दैट्स व्हाई वी एज इंटेलेक्ट्स विल ऑलवेज हैव टू थिंक अराउंड फॉर द पब्लिक सेफ्टी एंड फॉर द एनिमल राइट्स एज वेल. तो यही क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने आए. सो द इनिशियल डिसीजन विच दे गिवन कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं दे नीड टू बी टेकन अप और शेल्टर होम्स में डाल दो. एनजीओज आए, एनजीओ स्टार्टेड चेकिंग अप, और फिर वहां जाके पता चला कि शेल्टर होम्स आर नॉट प्रॉपर्ली बीइंग क्लीनड अप, प्रोटेक्टेड, उनको ज़्यादा फैसिलिटी नहीं, देन जस्ट बी डंप्ड ओवर देयर एंड दे आर बाइटिंग ईच अदर, ईटिंग ईच अदर, मल्टीपल थिंग्स वर हैपनिंग. तो सुप्रीम कोर्ट पे रिप्रेजेंटेशन हुआ, एविडेंसेस गए एंड देन 11th अगस्त के बाद 22nd अगस्त को ही दे हैव रिवाइज देयर ऑर्डर एंड गिवन डायरेक्शंस. अब वो क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड. 11th अगस्त को कोर्ट ऑर्डर्ड अथॉरिटीज टू स्टेरलाइज, वैक्सीनेट एंड परमानेंटली शेल्टर स्ट्रे डॉग्स. तो शेल्टर होम्स भेज दो. बट एनजीओस जो स्पेसिफिकली इस सेगमेंट में काम करते, दे चैलेंज दिस ऑर्डर citing violations of animal birth control rules 2023. So there were few rules. अब ये new add-on आप लोग के लिए आता है. The ones who have not read it up, तो please read about this. Just go and check it up. Objective or the summary of animal birth control. अब ये जो समरी वाली बात है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है. लॉट मेनी टाइम्स आई हैव गिवन अ सजेशन टू द स्टूडेंट्स व्हेन दे कम कि सर आई डोंट नो अबाउट दिस पर्टिकुलर केस, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस रूल बट इट वाज देयर इन द न्यूज़पेपर. करना क्या है, गो टू चैट जीपीटी, पुट अप द टॉपिक एंड राइट दिस समरी इन द लास्ट 1 year. तो जैसे ही यू विल हैव द समरी इन द पॉइंटर फॉर्म, यू विल अंडरस्टैंड. दैट इज पार्ट 1. तो यू विल गेट द समरी एंड द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दोज रूल्स व्हिच हैव बीन फ्रेम्ड. सेकंड, ask ChatGPT to frame a paragraph of 500 words keeping in mind CLAT 2026 paper. तो वो आपको वैसे ही एक पैराग्राफ दे देगा which becomes a reading intensive part, एक मटीरियल बन जाता है and that is limitless. You can do it for any of the legal and the current affairs part. It's a suggestion, you can go for it. ठीक है, चलो. तो 11th अगस्त को ये हुआ, रूल्स के बारे में एनजीओ ने रेस किए पॉइंट. 22nd अगस्त को द कोर्ट इशूड मॉडिफाइड नेशन वाइड गाइडलाइंस विच बैलेंसिंग एनिमल राइट्स विद सिटीजन सेफ्टी. क्योंकि यहाँ पे कोर्ट का 11th अगस्त में डिसीजन देने के टाइम व्यू ये था कि भाई राइट टू लाइफ भी एक पार्ट है, फंडामेंटल राइट, कीपिंग इन राइट्स, कि एट स्टेक ऑफ फ्यू स्ट्रे, मतलब पीपल आर डाइंग. तो क्या स्ट्रे डॉग्स को अगर हम हटा देंगे तो उनकी डेथ को प्रिजर्व किया जा सकता है? दैट वाज द क्वेश्चन एंड उसी का आंसर 11th अगस्त में दिया था. बट रिसेंटली दे हैव जस्ट चेंज इट अप, और चेंज में दे हैव ब्रॉट अप सर्टेन गाइडलाइंस. क्या हुआ? तो क्वेश्चन से क्या पब्लिक सेफ्टी इज अबव देन एनिमल राइट्स?
इज इट वायलेटिंग माई आर्टिकल 21 विथ 19? अब आर्टिकल 19 का वायलेशन कैसे हुआ? राइट टू फ्रीली एक्सप्रेस इज वन ऑफ द राइट विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 19(1)(a), है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन. तो यू आर एक्सप्रेसिंग इट टुवर्ड्स द एनिमल्स, इज बीन प्रोटेक्टेड ओवर हियर. तो इफ आई हैव माई एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटेक्टिंग देम, देन इट इज वायलेटिव और नॉट? तो ये क्वेश्चन है, एंड आर्टिकल 21 इज टॉकिंग अबाउट राइट टू लाइफ. तो क्या लोगों की लाइफ और इसके बीच में इज देयर इज अ वायलेशन विच इज हैपनिंग? दैट वाज अ क्वेश्चन. Should sterilized dogs be released to their original localities? जिनके वैक्सीनेशन हो गए, should be done. तो ये एक प्रॉपर थॉट था, एनजीओज ने किया, एक्टिविस्ट ने रेस किया, एंड इस पे डिसीजंस निकल के आ गए. क्या आ गए? स्ट्रे डॉग्स मस्ट बी स्टरलाइज्ड, वैक्सीनेटेड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटीज, प्रॉपर इंजेक्शन होगा, दवाइयाँ दी जाएंगी और उनका प्रॉपर केयर होगा. दैट इज पार्ट 1. स्टरलाइज्ड एंड वैक्सीनेटेड डॉग्स मस्ट बी रिलीज बैक. तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया, एक्सेप्ट रैबिड और एग्रेसिव वंस विच मस्ट रिमेन शेल्टर्ड. इसके पीछे रीजन है, क्योंकि रैबिट मीन्स विच आर द टाइप ऑफ द डॉग्स. यहाँ पे भी लिया है, अ डॉग विच इज इन्फेक्टेड विद रेबीज वायरस पॉइजिंग पब्लिक हेल्थ रिस्क. क्योंकि कट करने से फिर अगर उसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ, देन अगेन क्वेश्चंस आर गोइंग टू रेज कि सर देखिए इसकी प्रोटेक्शन भी नहीं हो रही और हमें वैक्सीनेशन नहीं मिला. दैट इज व्हाट वाज द क्वेश्चन. तो वो भी किया गया. इवन एनजीओ जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेशन किया, एबीसी रूल्स के बारे में बात की, एंड देन दे पुट अप देयर ओन contention before the court. They have said कि if people wants to keep safety among them, these NGOs should come forward, should deposit some amount, and in shelter homes का take care करिए. Not a problem. We'll give you the authority to take care of it. और इनको अगर कुछ भी फीडिंग करनी है, there should be a dedicated place. ऐसा नहीं मल्टीपल प्लेसेस पे you'll just spread across, क्योंकि देखो तादाद ऐसी कि बढ़ते ही चले जाएंगे, एंड देयर इज नो एंड. तो दैट्स व्हाई वी आल्सो नीड टू हैव सम सिविक सेंस व्हेन वी आर लिविंग इन द सोसाइटी. वी शुड नॉट स्पिल फूड एवरीवेयर, क्योंकि उससे गंदगी होगी. देन डॉग्स आएंगे, वो और गंदगी करेंगे, सोसाइटी में अनहाइजीन होगा. देन यू विल ओनली से म्यूनिसिपैलिटी इज नॉट क्लीनिंग द स्टफ. उनका पूप मल्टीपल जगह पे पड़ा है, दे आर जस्ट लिटरिंग एवरीवेयर. दैट इज व्हाट बिकम्स अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, स्पेशली फॉर दोज हु आर यंग किड्स, 6 to 10 years वाले. दे कांट डिफेंड देमसेल्व्स. इवन पीपल जिसको 4-5 डॉग्स अगर घेर ले, एक अडल्ट भी नहीं फाइट कर सकता, बिकॉज दे आर समवेयर डेंजरस. सो दैट्स वाई कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड ये डिसीजंस लिए गए कि एनजीओ सामने आए, डिपॉजिट करें, शेल्टर होम्स का ध्यान दें. फाइन भी लगाए गए, if someone is violating these rules even on the NGOs or activists, there will be fine being imposed. So that is what was the verdict been came over here. Further you can just go and read about what were the further orders. ठीक है. Next इसमें ABC rules की बात की थी, animal birth control rules, central rules which mandate sterilization and vaccination of stray dogs followed by their release in original locality. So these are very strong rules which are given but still not properly been implemented. NGOs are there, activists, they can definitely go for it and do it. ये कर सकते हैं. Even the societal people can also do, क्योंकि सबकी responsibility बनती है towards animals. Next is a suo motu cognizance. So यहाँ पे Supreme Court has taken suo motu means on its own the decision was taken when they see कि something wrong is happening. So court initiates proceedings on its own without a formal petition. Right to life, right to free expression we already know, and rabid dogs have already taken it up. ठीक है. लेट्स मूव टुवर्ड्स द फिफ्थ पार्ट विच मेंशन दैट सेम सेक्स कपल हैव चैलेंजेस अ गिफ्ट टैक्स रूल. सो टैक्स रूल्स मींस इनकम टैक्स एक्ट के अंडर देयर वाज अ सेक्शन दैट इज section 56(2)(x of income tax act which majorly talks about that अगर कोई गिफ्ट दिया गया है and if it is above 50,000 amount, then if the gift is being given between the spouses, that particular gift is being exempted from that tax. That's the rule. So provision of tax worth over 50,000 unless they are received from exempted relatives including a spouse. So I have not taken up the term relative. There is an exempted relative जो list दी गई है section के अंदर and which includes spouse. But spouse की definition में same sex have not been included, and that's why the same sex couple have challenged this particular case कि भाई if we are giving the gifts, we have to give tax. So that's a problem. So the couple have argued this omission discriminates against them. Definitely it's a discrimination and denies equal tax benefits which is available to heterosexual couples. That means the couples between मतलब male female के बीच में जो couple होते हैं, that is what heterosexual couple means. So the question is, does the definition of spouse include same sex couple also or not? क्योंकि income tax में it was not inclusive.
और डेफिनेशन भी यहाँ पे दिया नहीं कि व्हाट आर एक्सक्लूडेड, बट दे हैव मेंशन इंक्लूडिंग स्पाउसेस, बट स्पाउस का डेफिनेशन है एक्सप्लिसिटली नॉट गिवन. सो देयर विल बी अ रिवीजन, आई थिंक 18th ऑफ सितंबर को द डिसीजन इज गोइंग टू बी देयर. तो हम शायद सितंबर के राउंड अप में विल कम अप विद दैट. द लॉ इनकरेक्टली penalizes them for their sexual orientation and relationship status. ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि हम पे पेनल्टी लग रही बिकॉज वी आर अ सेम सेक्स कपल. नेक्स्ट आगे आते हैं. सो दे हैव एक्नॉलेज द सीरियसनेस ऑफ द इशू कि हाँ बात तो सही है. दे हैव इशूड नोटिस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर द यूनियन गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स, क्योंकि यहाँ पे अब नया लॉ तो दे कांट कम अप विद दैट. दे कैन ओनली रिक्वेस्ट थ्रू अ नोटिस. और ये नोटिस क्या है? इट्स अ प्रोसीजरल स्टेप जहाँ पे कोर्ट seeks the government's legal position before deciding a case with constitutional implications. They can't bring up a verdict. They want कि भाई, क्योंकि इनकम टैक्स रूल के बारे में सेंट्रल की अथॉरिटी होती है, फाइनेंस से रिलेटेड है ना, तो इसीलिए दे हैव सेंड अ नोटिस टू अटॉर्नी जनरल. ये नोटिस मीन जहां पे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी से चाहिए, बिकॉज इफ विल कम अप विद अ डिसाइडेड केस वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंप्लीकेशन पे क्वेश्चन मार्क करेगा. सो उस चीज को ध्यान में रखना है. दैट इज व्हाट इज बीइंग देयर. Next, they say they have recognized that the interpretation of spouse in this particular section 56 of the Act could have far-reaching consequences for equality in the taxation which is there, and the next hearing will be on 18th of September, which I mentioned. So, section 56 क्या होता है? It provision deems that gifts over 50,000 are taxable unless it is being shared between relatives or relative including spouse, which is already we discussed. Notice हो गया. Gift tax means it's a tax levied on money property which is received without consideration above a threshold. तो 50,000 से ज़्यादा वाले गिफ्ट पे टैक्सेशन होता है. That's a question. But if coming under between these definitions, it will be exempted. तो ये क्वेश्चन रेज हो गया, ठीक है. एंड इसी क्वेश्चन की वजह से ये वेंट टू द कोर्ट एंड कोर्ट हैव गिवन अ नोटिस टू देम, और आई थिंक डिसीजन आ जाएगा. चलो, तो 5 केस हो गए. नेक्स्ट, द लास्ट 2 ones. फर्स्ट इज द कर्नाटका हाई कोर्ट हैव रूल्स पॉक्सो एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल. तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था, सर्टन रूल्स वर इम्पोज. तो केस क्या था? एक 48-year-old विमेन वॉज अक्यूज ऑफ सेक्सुअली असॉल्टिंग अ 30-year-old बॉय. नॉर्मली सोसाइटल नॉर्म्स क्या होते हैं? एक मेल ने फीमेल को असॉल्ट किया होगा, बट यहाँ पे सीन थोड़ा सा उल्टा है. 48-year-old women have sexually assaulted 13-year-old boy. She petitioned to quash charges under section 4 and 6 of POCSO. Now she has raised up a point when it was brought before the court कि भाई I am not liable under POCSO के section 4 and 6 में, arguing that the act is using a pronoun he, it excludes women. That is what they have questioned it. अब petition file किया. The Karnataka High Court have rejected a plea and upheld the charges. तो क्वेश्चन आया, इज द पॉक्सो एक्ट अ जेंडर स्पेसिफिक आइडेंटिफाई परपेट्रेशन? दैट इज नॉट द केस. कैन द प्रोनाउन ही इन स्टैट्यूट्स रेस्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ओनली टू मेन? ये भी एक क्वेश्चन आया. डू डिलेज इन रिपोर्टिंग और लैक ऑफ मेडिकल टेस्ट वीकन क्रेडिबिलिटी ऑफ सेक्सुअल अब्यूज केसेस? इस केस में भी कोर्ट ने जब जजमेंट दिया, उस जजमेंट में भी दे हैव रेज्ड अप अ पॉइंट एंड ऑल्सो गिवन एन एग्जाम्पल कि देयर आर सर्टन केसेस जहां पे शायद 3 to 4 years अंडर पॉक्सो में, जहां ट्रॉमा से रिलेटेड मेंटल ट्रॉमा किसी का इंपैक्ट हो रहा है, 3 से 4 साल का भी ड्यूरेशन इज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड सो दैट द केस कुड बी ब्रॉट आफ्टर 4 years. ये भी कोर्ट ने कोट किया था, जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने केस में कोट किया था, इस स्टेटमेंट को भी बताया था. सो दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन. तो हमेशा क्या ये टाइम लिमिट थ्रेशोल्ड कुछ सर्टन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंशियल केसेस में ये प्रॉब्लम कर सकता है, या फिर उतना ही लिमिट के अंदर केस फाइल करना चाहिए? क्योंकि अगर कोई एक्चुअली ट्रॉमेटाइज है एट एन यंग एज, तो हो सकता है उसमें कैलिबर नहीं, उसमें दे डोंट हैव द पावर और द अर्थ मोटिवेशन टू गो एंड फाइल द केस. दिस कैन रियली हैपन. सो इसलिए ये कुछ केसेस हो गए. और डीले रिस्पॉन्स में करेंगे तो क्या वो जेंडर मेडिकल टेस्ट वगैरह क्या ये केस को वीकन करेगा? दीज वर द क्वेश्चंस. सो द फाइनल डिसीजन केम दैट कोर्ट हेल्ड दैट ही इन लॉ इंक्लूड्स ऑल जेंडर्स एज पर सेक्शन 8 ऑफ आईपीसी. पॉक्सो एक्ट इज अ चाइल्ड सेंट्रिक. इट प्रोटेक्ट विक्टिम्स इररिस्पेक्टिव ऑफ अब्यूजर्स जेंडर, चाहे वो फीमेल कोई अब्यूज करे चाहे मेल अब्यूज करे, इट कुड बी एनीथिंग. Delay in reporting even 4 years does not nullify complaints. That is what I have mentioned it about. Petition was dismissed. Trial to proceed under the POCSO was there. Section 4 or 6 के अंदर case were taken part. What were the terms? Section 4 and 6. Penetrative and aggravated penetrative assault which has happened. Gender neutral law protecting all children below 18 years of age.
दैट इज अंडर द पॉक्सो एक्ट. इसका फुल फॉर्म देख लेना, लास्ट ईयर पेपर में था. सेक्शन 8 ऑफ आईपीसी से ही मीन्स ऑल द जेंडर्स बीइंग देयर एंड हाई कोर्ट हैव द पावर अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC that for any misuse happening in any of the law, High Court can come into the picture and take the matter limited to clear misuse. अगर ये हो रहा है तो they can take up the matter. And the last term over here is potency test, which says not proof of consent, only relevant if impotency is claimed in a particular case. These were the provisions. Now talking about the last case which mentions about, जो मैंने कहा था कि देयर इज एन प्ली अगेंस्ट विजय's पार्टी, ही इज एन साउथ इंडियन एक्टर, इन अ ट्रेडमार्क डिस्प्यूट कि भाई यू आर यूजिंग अ सिमिलर कलरिक फ्लैग टू योर पार्टी विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ वन ऑफ द ट्रस्ट विच यूज. आई थिंक उसमें कुछ शेर का कुछ साइन बना हुआ है और दूसरे वाले में कुछ और सिंबल्स बने, बट द कलर कोड इज कंप्लीटली सिमिलर. वो येलोइश कलर का, यू कैन जस्ट गूगल इट अप, आपको पता चल जाएगा. सो देयर वाज अ ट्रस्ट अलाइज दैटी तमिलगा वेत्री Kanzgam, pardon me for the name if I'm pronouncing wrong. Tiveki party flag copied its red, yellow, red color scheme. That is what they have raised a question कि that trust have a coloric already वो red, yellow, red color का flag है and they have also used the same color thematic scheme flag. They claimed infringement of both copyright, artistic work and a trademark. तो trademark dispute इसलिए आया that have registered emblem sought to restrain actor Vijay's party from using its flag. ये question आया, but when the question went to the court have declined that plea. But what was the question? Do actual में the color arrangements alone qualify for protection under the trademark law? मतलब कलर हो सकता है, बट क्या सिर्फ कलर एक पार्ट होने से इट कैन क्रिएट कंफ्यूजन इन कॉन्टेक्स्ट विद ट्रेडमार्क? Or can a party flag infringe copyright when only color schemes are similar but symbols differ? तो सिंबल अलग है, कलर स्कीम सेम है. और ऑल्सो केस अंडर ट्रेडमार्क डिस्प्यूट तभी हो सकते होंगे व्हेन समवन इज एक्चुअली कमर्शियली अर्निंग समथिंग. मैंने तो सिर्फ अपनी एक पार्टी का फ्लैग रखा है, अब मैं उससे क्या ही कमा रहा हूँ और आपको उससे क्या नुकसान हो रहा है, रादर देन इट माइट गिव एन इंप्रेशन दैट बोथ आर टुगेदर. ठीक है, चलो. सो कैन नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज इन्वोक ट्रेडमार्क लॉ? भाई ये तो नॉन कमर्शियल है, यू आर वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल. अब अगर मैंने भी अपने किसी एक पर्टिकुलर ट्रस्ट का फ्लैग रख लिया विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ द कलर स्कीम ऑफ एनी नेशनल फ्लैग, तो क्या क्वेश्चन रेज हो जाएंगे? ऐसे तो पॉलिटिकल पार्टीज में मल्टीपल क्वेश्चन रेज होंगे, आपका ऑरेंज है, आपका ग्रीन है, आपका व्हाइट है, मल्टीपल क्वेश्चन कुड बी रेज. सो डज अ मियर रजिस्ट्रेशन अंडर अ ट्रेडमार्क एंड अ कॉपीराइट ऑटोमेटिकली ग्रांट एक्सक्लूसिव राइट्स? तो दिस इज अ क्वेश्चन, क्योंकि someone gets a trademark or a copyright registration under the IPR laws so that कोई commercially और उसका benefit ना ले. अब दोनों ही non commercial organization है तो कैसे benefit होगा? Let's see the final decision. On copyright it says no infringement. TV case, the trust elephants in oval frame is not equal to trust's fish, tiger, bow arrow in circular emblem. That is, it says artistic works were different. तो कहीं ना कहीं different है, color scheme, theme सेम था, बट समवेयर देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि वन द ट्रस्ट इज यूजिंग एलिफेंट विच इज नॉट इक्वल टू द ट्रस्ट फिश एंड एवरीथिंग. ठीक है, सॉरी, द पार्टी टीवे की इज यूजिंग एलिफेंट एंड ट्रस्ट जो फिश, टाइगर एंड बो एरो यूज कर रहा था, दैट इज डिफरेंट. ऑन ट्रेडमार्क protection applies only in the commercial trade. That is important part. Since neither party is engaged in commerce, no infringement have occurred about the trademark. क्योंकि कोई commercial ही नहीं कर रहा ना, लोगो लेके क्या आप कुछ ऑन कर रहे हो? नहीं. अगर आपका और मेरा नाम, ब्रांड नेम सेम है and we are earning money out of it, then इसमें question raise होगा. Plea was rejected and TVK allowed to use its flag. That means the party है ना, that is what the party was using the flag. I've just यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया, but it's right. Now legal concept में copyright law, trademark law, non-commercial use, color combinations, these are such generic terms which you can just see it over here from the screen. ठीक है, सो दैट इज इट गाइज फ्रॉम माई एंड, एंड आई थिंक आप लोग यहाँ तक वीडियो ज़रूर देखा होगा, और देखा है तो थैंक यू सो मच. एंड डोंट फॉरगेट टू share our video as much as possible, and in these next 2 to 3 months we will definitely going to come up with more strategic sessions and थोड़ा academic sessions भी आएंगे. So please हमारे channel पे जुड़े रहिए, please be with us till your journey and even the post journey for your exams, because there are multiple exams which are going to be there in the next 3 to 4 months. So till then guys, bye bye, take care. सिद्धांत सर signing off, वापस जल्दी मिलेंगे.